Fine. Okay. We have finished until chapter number 4. Today we are going to start chapter number 5. Fine. uh, okay. With reference to the introduction of the chapter, what we are about to learn in this chapter, let us recall actually what we have studied earlier. So, into previous chapter, we have studied the pattern of inheritance. Means the mechanism of inheritance, the mode of inheritance, uh, the outcome what we have got, the result what we have understood here is uh, characters are getting forwarded from one generation to the other by gametes with the help of the chromosomes, and chromosomes are containing the genes or the factors which have two types of allele, dominance and recessive. The characters are not only getting forwarded from one generation to the other, but also they are getting expressed into the next generation so that we can view the actual character into the offsprings. So there are actually two mechanisms, right? One is forwarding the characteristic to one generation to the other. Second is expressing those characters. So phenotype and genotype, there are two things what we have gone through. So genotype means the genes, the factors which are getting forwarded. Phenotype means expression. So two point of views what we have studied earlier. So those pattern of inheritance. Now let me guide you towards the other aspect of life. All the living organism, they do work, that is life processes. So like the other life processes, now inheritance also, inheritance is also one of the life process which is responsible for the sustenance of the species, generation by generation. If inheritance is not there, the offspring cannot be able to produced. Am I very correct or not? So in that case, it is required process to sustain the life. Life को अगर sustain करना है तो inheritance करना पड़ेगा. So it is life processes. That is the reason why it is counted as life processes. What I mean, right? I hope I am very clear with this. Okay. Any of the life processes are physical processes, or it is also called physiological process. So again, inheritance pattern what we have studied earlier into this chapter number 4 is actually physiological event whatsoever is happening. Is it very clear? So what you have studied is physiology, physiology of inheritance. Okay. Now with reference to physiology, any of the physiological process is depending on metabolic reactions. If metabolic reactions are getting performed by cells,
then the result would be physiological processes. Am I correct or not? है ना? That's we have already understood with reference to plant physiology as well, with reference to animal physiology as well. One example, photosynthesis in plant. So that is physiological process. But to understand them, you are supposed to go through metabolic process. How carbon dioxide is getting received, how water molecule is entered into the cell, and how chloroplast is responsible for conversion this all things into the glucose, a sugar, and getting converted into starch and getting stored, or it is getting utilized into the respiration. So that's the metabolic reaction. To understand the physiology, you need to understand the metabolism, because ultimately what happens is metabolism. This is the result. Processes are these and result is this. I hope I am very clear in your mind. So actual ma thai che a. This R has to happen. Metabolic reactions are supposed to happen. And what you get is the result as a physiological process. So again, when I am targeting, I repeat, when I am targeting inheritance, as a physiological process, it also has to go through these. It also have metabolic processes, pathways, and that's what your chapter means. Because molecular base means one molecule to the other, to the other, to the other. So it is pathways. So we are now about to learn metabolic reactions of inheritance. पहले हमने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को समझा, अब हम उसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर जा रहे हैं. तो पहले फिजिकल स्ट्रक्चर को जाना, अब हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करने वाले हैं. तो व्हाट आई वुड लाइक टू से यू हियर इज, when I think about heredity or inheritance, it has two duties to be performed. Two duties. One, just forwarding traits from one generation to the other, and second is expressing the traits. So these both duties are getting performed. Those pathways are separate pathways, and all pathways we are going to study here. Okay, now what idea what you have is, the inheritance is maintained by gametes by the medium of chromosome. Am I correct? Chromosomes are having genes on them, and genes are made up of DNA. Genes kau ke DNA kau, both are same. So DNA is one of the key hero, the center of the attraction of genetics. DNA fragmented into small segments called genes. Genes, genetics, study of behavior and structure of genes, that is called genetics. Fine. So that's what our intention of starting this chapter, to understand this chapter. Fine. So again, I would like to highlight few main points. What we are going to study here is, number one, molecular basis of inheritance. That's your main point of, main heading of the discussion. Okay, we will discuss the detailed structure of DNA. This is one, structure of DNA. This is the one thing, because center of attraction, the hero is DNA, as I said earlier. Now we will study the replication. We will study RNA, and we will study genetic code. We will study the protein synthesis mechanism. These are the main events what we are going to learn in this chapter. Earlier into the history,
I taught you few basic concepts in chapter number 8, 9th and 10th, especially in chapter number 9, right? That say for example, there are main 4 types of biomolecules. Number 1, carbohydrate. Number 2, lipids. Number 3, proteins. And number 4, nucleic acids. Fine. Mind it now. Our game starts now. I am writing all those 4. Number 1, carbohydrates. Number 2, lipids. Number 3, proteins. And above all, number 4, nucleic acids. Now these 3 are usually constructive molecules. These 3 are constructive molecule, means your body constructed by these 3 main components called carbs, lipids or protein. Now among these 3, the main hero is protein. This is the main constructive material. So say for example, you want to design a particular living organism, say yourself or myself. We need to frame this structure. Means you need to map it first. Design, we need to map it. आपने किसी ने अगर जाना हो कि से फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा सा प्लॉट लिया हमने 100 यार्ड्स का, 115 यार्ड्स का, एंड उसके ऊपर हमें अगर कोई से फॉर एग्जांपल छोटा सा बंगलो या मकान कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे डिजाइन मेरी, मुझे जैसा अच्छा लगे वैसा, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? एक तो पहले प्लॉट होना चाहिए मेरे पास. ओके, है मेरे पास. नाउ व्हाट? आई नीड टू असाइन माय ओन रिक्वायरमेंट. मेरी जरूरत क्या है, मुझे कितने बेडरूम्स चाहिए, मुझे कितना बड़ा या छोटा लिविंग रूम चाहिए, मुझे कितने टॉयलेट्स चाहिए, उसमें मुझे गार्डन चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी एक लिस्ट आउट होती है. उनको लेके मुझे उसके आर्किटेक्ट के पास डिजाइन बनाने के लिए जाना पड़ता है. आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ डिजाइन फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं नक्शा, अ मैप. मैप होता है बड़ा सा, अगर किसी ने देखा हो, किसने देखा है ऐसा मैप? इंजीनियर के पास होता है यूजुअली. अगर आप मकान की डिजाइन बनाते हो तो उसका एक मैप होता है. फाइन. वो मैप बनता है पहले, जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं. अब वो डिजाइन अप्रूवल के लिए जाता है ऑथोरिटी के पास, गवर्नमेंट की एजेंसी के पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, तालुका पंचायत के पास, जिला पंचायत के पास, जिस एरिया में आप रहते हो यहाँ, वहां पे वो अप्रूव करेंगे उसको. अगर अप्रूवल मिलता है देन यू कैन कैरी ऑन विथ योर कंस्ट्रक्शन वर्क. अब नक्शा मिल गया मुझे, अप्रूव हो गया है, तो डज इट मीन कि मेरा मकान बन गया या मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? तो नक्शा बनना क्या होता है पता है? इनहेरिटेंस. कि मैंने एक जनरेशन में से नक्शा बना के दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड कर दिया, दैट्स इट. जो कि डीएनए के फॉर्मेट के अंदर जाइगोट जो सिंगल सेल है, पॉइंट टू बी नोटेड, जाइगोट एक सिंगल स्ट्रक्चर है जहां पे आपकी बॉडी की डिजाइनिंग की शुरुआत हुई थी. यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट. तो जाइगोट का जो न्यूक्लियस हुआ था ना भैया अपना, उसके अंदर ये नक्शा था सिर्फ. अब जाइगोट की ड्यूटी क्या थी?
नक्शे के अंदर जो डिजाइन बना के रखी है हमारे माँ बाप ने, वैसी डिजाइन यहां पर बना के रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना। तो वो ड्यूटी किसकी थी? वो जो सिंगल सेल था ना, जिसका नाम बोला हमने जाइगोट, उसकी थी। तो उसको जो मिला है वो सिर्फ मैप मिला है, मैप, जीन्स का मैप, जीन्स का मैप मिला है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटीन, याद आ गया अगर हो तो। उसके पास क्रोमेटीन था, क्रोमेटीन डीएनए से बना है, एंड डीएनए के पास वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सब जो आपकी बॉडी की डिजाइन है, जो मेरी बॉडी की डिजाइन है, वो सब एक ही न्यूक्लियस के पास साथ। सोचो, एक सेल ने हमें डिजाइन करा है। आपकी डिजाइन एक सेल ने बनाई है, सेल ने नहीं, सेल के न्यूक्लियस ने, सेल के न्यूक्लियस ने नहीं, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन से आप बने। वो इंफॉर्मेशन ये है, उसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। अब बारी आती है नक्शा जो हमें मिला है अप्रूव होके म्यूनिसिपालिटी से, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ेगा भैया, उसको मुझे लेके देना पड़ेगा रेती, सीमेंट, उसको मुझे देना पड़ेगा आयरन, उसको मुझे देना पड़ेगा ईंट, पत्थर, जो भी उसको चाहिए, उसको सब लेके मुझे देना है। तब वो जाके वो कंस्ट्रक्शन करेगा जो मैंने चाहा है। तो ये सब ईंट है, पत्थर है, ये सब रेती है, ये कंस्ट्रक्टिव मटेरियल है अपनी, ये राइट। उसमें सबसे बड़ा जो सबसे मेन होता है वो ईंट होता है। ये ईंट है अपनी, प्रोटीन। उसको अगर स्ट्रांगली रखना है तो इसके लिए आपको सीमेंट भी डालनी पड़ेगी, रेती भी डालनी पड़ेगी। ये सीमेंट है, ये रेती है, सिंपल। तो वो तो एडिशनल है, बट मेन कंपोनेंट कौन बन गया? ईंट वाला, ईंट वाला दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन जो सबसे पहले चाहिए भैया, प्रोटीन है तो ही आपका ढांचा बनेगा, वरना ढांचा बनने वाला नहीं है। सिर्फ सीमेंट रेड़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? सो आप हेरिडिटी में इसका यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज कर रहे हो। तो वो जो एक सेल था ना जाइगोट, जिसके पास ऑलरेडी ये है, अब उसको क्या चाहिए होगा? ये। किसके ऊपर से? इसके ऊपर से। क्या चाहिए? ये। तो पूरा खेल ही तो भैया ये है जेनेटिक्स। DNA, that is these, will produce the protein, that is this। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? बस यही जेनेटिक्स है अपना। जेनेटिक्स में इसके सिवा कुछ है ही नहीं। यही सेंट्रल पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग का, कॉन्सेप्ट का। तो हमें तो ये स्ट्रक्चर बनाना है जिसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन। हमें इस स्ट्रक्चर को चलाना है तो एंजाइम चाहिए, एंजाइम प्रोटीन है। तो स्ट्रक्चर बनाना है तो भी प्रोटीन चाहिए, स्ट्रक्चर को चलाना है तो भी प्रोटीन चाहिए। तो अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड इज बिहाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन है इसके पास। समझ में आ रही है बात मेरी परफेक्टली या नहीं? राइट। तो हमने एक सीक्वेंस मैंने आपको दी थी जब हमारी बात अर्लियर स्टेज पे हुई थी, मे बी एट चैप्टर नंबर 9, कि कभी भी आप सीक्वेंस देखो कोई भी एक्सप्रेशन की, तो एक होगा डीएनए, वो फॉर्म करेगा आरएनए को, एंड वो फॉर्म करेगा प्रोटीन को। ऐसी शायद काफी सारी टाइम इसको हमने रिवाइज किया था, एवरी ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में एक एक बार तो मैंने इसको हाईलाइट किया ही होगा। तो अगेन मैं यहां पर अब जो फिजिकल प्रोसेस है ना, ये इसको मैं केमिकली आपको समझाने वाला हूं, राइट। तो डीएनए एंड आरएनए, दिस टू आर जेनेटिक मटेरियल, एंड प्रोटीन इज योर कंस्ट्रक्टिव मटेरियल। तो हम जो बात करने वाले हैं वो ये पूरे ये तीनों के इंटर रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं, कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। डीएनए जब खुद की कॉपी बनाता है, एस फेज, किसको याद आ गया? चैप्टर नंबर 10, स्टैंडर्ड 11, सिंथेसिस फेज, रेप्लिकेशन, खुद की कॉपी बनाता है, याद आ गया? तो उसमें कुछ तो होता होगा ना, कोई इवेंट तो होता होगा ना वहां पे, बायोकेमिकल रिएक्शंस तो होते होंगे ना, मेटाबॉलिज्म होता होगा, बस वो हमको जानना है। देखिए,
फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, देन इट्स रेप्लिकेशन। हम देखेंगे रेप्लिकेशन कैसे होता है, कौन एंजाइम है जो ये करते हैं, कैसे होता है ये हम देखेंगे। यहां पर आरएनए बनाएंगे हम, आरएनए कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, राइट। आरएनए के पास होंगी जेनेटिक मटेरियल के कोड। हमने पॉइंट म्यूटेशन में, वो सिकल सेल एनीमिया में जेनेटिक कोड ऐसा वर्ड आया था, याद है तो? तब मैंने बोला था कि वो आरएनए के पास होता है, डीएनए में से जब आरएनए बनता है, आरएनए के पास ये कोड वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर से प्रोटीन बनेंगे। तो ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड से एक जेनेटिक कोड बनेगा जो एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। हम वो देखेंगे पूरा मैकेनिज्म। एंड एट द लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस, मींस प्रोटीन सिंथेसिस में जो होगा वो ट्रांसलेट होगा। ये है ट्रांसलेशन। आरएनए में से जेनेटिक कोड के हिसाब से हम प्रोटीन बनाएंगे, कैसे बनता है, राइट। सो इतने इवेंट्स को हमें देखना है इस चैप्टर के अंदर। सो शेल आई स्टार्ट विथ योर परमिशन, राइट। सो चलिए बात करते हैं पहली इवेंट की। तो हमें पहले तो ये जानना है भैया कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप है, राइट। चैप्टर नंबर 8 में आपको न्यूक्लियस के बारे में समझाया गया होगा शायद, राइट। न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस हैज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को हमने बोला था क्रोमेटिन, राइट। क्रोमेटिन या तो जेनेटिक मटेरियल में मेन कंटेंट होता है डीएनए, राइट। क्या होता है? डीएनए। एंड दूसरा उसका हमसफर है आरएनए। अंडरस्टूड। अब ये दो क्यों है? व्हाई डू वी हैव दिस टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, राइट। तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं कि क्यों ये दो टाइप के मटेरियल हमको चाहिए। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, sorry, heredity involves two processes, एक इनहेरिटेंस और एक एक्सप्रेशन। तो प्रोसेसेस दो है हेरिडिटी में एक्चुअली, राइट। हेरिडिटी के अंदर दो प्रोसेसेस है। एक तो जितने ट्रेट है वो एक जनरेशन में, मुझे एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में फॉरवर्ड करने हैं। तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरवर्डिंग ट्रेट। ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सप्रेसिंग द ट्रेट। दोनों एक ही नहीं कर सकता है, दो पीरियड अलग है, दो सब्जेक्ट अलग है। फिजिक्स में नहीं लूंगा, नहीं आएगा मुझे, है ना। और अंकित सर को बायोलॉजी नहीं आने वाला है। So we cannot exchange the material, we cannot share the common subject. It is independent, duties independent, work independent, job. So the thing is that दोनों अलग अलग ही है, तो उसके लिए हमें मटेरियल भी दो अलग अलग चाहिए। So मेरे पास इनहेरिटेंस के लिए जो मटेरियल है दैट इज डीएनए। डीएनए क्या करेगा? इनहेरिटेंस को मेंटेन करता है। एंड एक्सप्रेशन के लिए मेरे पास है अदर स्ट्रक्चर कॉल्ड आरएनए। अब ऐसा क्यों? तो अगेन मैं वो सीक्वेंस लिख देता हूं आपके सामने जो हमने अभी बात की थी। डीएनए में से मुझे चाहिए आरएनए, एंड आरएनए में से मुझको बनाना है ये प्रोटीन। ऑल राइट, सो लेट मी फोकस फर्स्ट ऑन डीएनए। तो डीएनए कहां पर है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू यू, और व्हाटसएवर द आइडिया व्हाट यू हैव? लोकेशन ऑफ डीएनए भुज सेंटर बोलिए।
Yes, inside the nucleus of cell. Okay, my second question again belongs to chapter number 8, standard 11. प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है? विच इज द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? यस बरोड़ा, इफ यू वांट टू. सॉरी, ओके, RER के ऊपर कुछ है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? यस, सो राइबोसोम्स इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, द रेफरेंस यू हैव गिवन इज कंप्लीटली राइट कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम राइबोसोम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है. अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, राइट, कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट. तो यहां पर मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करना है और डीएनए जो यहां पर है उसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा आरएनए बनाया. तो आरएनए मेरा कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है. और मुझे ये कोड जो डीएनए का कोड है ना, वो पूरा बाहर निकाल के यहां पे ले जाना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल दोनों एक ही काम करते हैं डीएनए, ये दोनों काम डीएनए करेगा तो क्या होगा? तो पूरा डीएनए जो लंबा है, इट इज लॉन्ग पॉलीमर. अब इसको बाहर निकालना. अब रिबोसोम की कैपेसिटी है उसको हैंडल करने के. रिबोसोम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो बेचारा पागल हो जाएगा. आपके सामने हाथी आके दहाड़े दो, खबर पड़े कैसे खड़े रहते हैं सामने, है ना, पैरों के नीचे ऐसे धरती खिसक जाएगी. सो काइंड ऑफ दैट सिचुएशन वुड बी पॉसिबल विथ राइबोसोम. वो हैंडल ही नहीं कर सकता है उतने बड़े स्ट्रक्चर को. सो लिमिटेशन आ गई. दूसरी, ये जो न्यूक्लियस का एनवेलप है उसके थ्रू उसको ले जाने में बड़ कितना करना पड़ेगा उसको, इसके इतना लॉन्ग पॉलीमर है. आप समझ रहे हो ना मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, है ना. सो ये प्रॉब्लम है दूसरा. तीसरा एक बड़ा सा प्रॉब्लम, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नरभक्षी बैठा है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम. लाइसोसोम का काम क्या है पता है? कोई भी मॉलिक्यूल जब काम खत्म कर लेगा ना, तो लाइसोसोम उसे खत्म कर देगा कि अब तेरा काम खत्म, अब तू खत्म. वो ऐसे राह देख रहा होता है कि इसका काम खत्म होने के बाद मेरा पेट भर जाएगा. समझ में आ रही है बात मेरी? तो डीएनए को अगर बाहर निकाला वो तो वाट लगा देगा लाइसोसोम उसकी. तो दूसरी बार जब प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो न्यूक्लियस बंजेरा बजाएगा, डीएनए तो खत्म हो गया. समझो मेरी बात को. तो डीएनए बाहर नहीं निकाल सकते हम. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वी कैन नॉट. सबसे बड़ी बात कि अगर आपको मैंने बोला कि आपकी बोर्ड की एग्जाम में जेनेटिक्स में रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो 100% पेपर मैंने निकाला है वो आएगा, तो आप चैप्टर नंबर 5 पूरा पढ़ोगे कि वो एक ही पॉइंट पढ़ोगे? मैंने बोल दिया है आपको कि यही आने वाला है बोर्ड में. तो कौन पूरा चैप्टर पढ़ेगा? आई एम राइट और रॉन्ग? अगर पढ़ना भूल गए तो क्या होगा पता ही है. तो एक पेज फाड़ लिया, बात हो गई खत्म. पूरी बुक लेके जाओगे, पढ़े नहीं हो, याद नहीं रहता है और कॉपी ही करने का डिसाइड किया है तो पूरी बुक लेके जानी है. माइक्रो, है ना, बनती है माइक्रो. पता है ना, पता है ऐसी चिट्स बनती है छोटी छोटी माइक्रो जेरोक्स, है ना. हम जो बोर्ड की एग्जाम में मॉडरेटर की भूमिका में हमें ड्यूटीज जब मिलती है ना, चेक करते हैं ना वो पॉकेट्स, तो उसमें से निकलती है माइक्रो जेरोक्सेस, है ना. तो पता है कि कितने कितने लोग, कैसे कैसे महान लोग कैसे कैसे महान आइडियाज यूज करते हैं. बस वही आइडिया यहाँ पर है, यहां से वो मिला है उसको. ये तो पूरी बुक है. तो एग्जामिनेशन हॉल पर पूरी बुक ले जाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है मुझे एक ही प्रोटीन चाहिए अभी. यहां पे तो काफी सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है एक डीएनए के ऊपर. आप समझ रहे हो ना मेरी बात को?
तो सब पूरा वहां पे ले जाके क्या काम है? तो एक पेज फाड़ा मीन्स एक टुकड़ा जो है उसका आरएनए बना दिया, और वही फाड़ा हुआ या जेरोक्स, माइक्रो जेरोक्स वर्ड परफेक्टली मैंने यूज किया है उसको। तो पूरी जो है ना उसकी एक माइक्रो जेरोक्स कर दी, इतनी सी सिंगल डीएनए की सिंगल जो जीन है, सिंगल जीन को मैंने कॉपी कर लिया माइक्रो जेरोक्स की, एंड उसको मैंने खिच्चे में रखकर सीधा एग्जामिनेशन हॉल में, अपना काम हो गया। बस वही आरएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरएनए जाएगा कहां पर? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास क्या होगा? उसका प्रोटीन में कन्वर्जन। तो डीएनए एंड आरएनए की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उसको, कैसे उसको मिली है, वो मैंने क्लियर किया आइडिया आपके दिमाग में, एंड आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना? ओके। अब प्रोटीन जो बनाना है मुझे, उसके अंदर जो कोडवर्ड मिलेगा मुझे, जेनेटिक कोड जिसको मैंने बोला था, क्या बोला था? जेनेटिक कोड। वो जिसके ऊपर होता है उसको मैं बोलता हूं mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए। क्या बोलता हूं मैं? मैसेंजर आरएनए, जिसके पास कोड वर्ड है, मैसेज लेके जाता है कि मुझे इस टाइप का प्रोटीन बनाना है। तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ कोड which is getting carried from one DNA, that is gene, to the protein. उसको ले जाने के लिए भी एक और आरएनए है जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए। अब देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि मुझे न्यूक्लियस में से उठाकर एमआरएनए जो बनता है ना, वो एमआरएनए है। डीएनए में से जो कॉपी होकर आरएनए बनता है उसको मैं बोलूंगा एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, करेक्ट? इसको वहां से उठाकर ले जाके रिबोसोम के ऊपर अगर मुझे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर, आई रिक्वायर ट्रांसफर आरएनए, सेकंड टाइप ऑफ आरएनए, टीआरएनए। द सेम टीआरएनए also brings about अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट क्या होगी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर? प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड का इंटर रिलेशनशिप क्या है? यस, तो प्रोटीन जिससे बनता है, प्रोटीन तो पॉलीमर है, वो जिससे बनता है वो मोनोमर है अमाइनो एसिड। तो मुझे प्रोटीन बनाना है तो एक्चुअल में मुझे तो चाहिए एमिनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कहां पर है वो? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में उसको गिन गिन के अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड, पॉइंट टू बी नोटेड, as per the sequence of genetic code which is given on mRNA. mRNA के पास क्या है? जेनेटिक कोड की सीक्वेंस है। तो फर्स्ट नंबर का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग पहले नंबर का mRNA, सेकंड नंबर का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर का एमाइनो एसिड उसको अरेंज करना है। थर्ड नंबर का जेनेटिक कोड है उसके अकॉर्डिंग थर्ड नंबर का एमाइनो एसिड उसको अरेंज करना है। तो उसको भी पकड़ पकड़ के ले आना पड़ेगा कि भैया चल तेरा टर्न आ गया भाई, राइट? उसके बाद चौथे नंबर को पकड़ना, ए भाई इधर आ इधर आ इधर, ऐसे करके चल तेरी बारी आई है, उसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। बस वो ट्रांसफर करने की काम ये टीआरएनए करेगा। सो इट इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। क्या नाम है उसका? ट्रांसफर आरएनए। एंड सबसे बड़ा आरएनए जिसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में होता है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 जिसके ऊपर लिखा था इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। याद नहीं होगा शायद, नहीं है ना? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, ऐसा लिखा है वहां पर, राइट? तो अभी याद कर लीजिएगा कि राइबोसोम जो होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर दो मटेरियल होते हैं। एक होता है प्रोटीन जिसकी दो सीक्वेंस होती है, मींस दो पॉलीपेप्टाइड है, एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड लार्ज सब यूनिट, एक छोटा पॉलीपेप्टाइड स्मॉल सब यूनिट। तो जो दो सब यूनिट होते हैं ना, 80S, सो 60S एंड 40S, ये दोनों प्रोटीन की सीक्वेंस है। एक्चुअली एक बड़ी सीक्वेंस है, लार्ज सब यूनिट है,
एक छोटी सीक्वेंस है, स्मॉल सब यूनिट्स है। तो वो दो प्रोटीन है एक्चुअली। क्या है? प्रोटीन प्लस आरएनए। जो आरएनए है ना वो ये है राइबोसोमल आरएनए। क्या है? राइबोसोमल आरएनए। तो वो स्ट्रक्चर बनाता है किसका? राइबोसोम का। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये तीन लोग इन्वॉल्व है, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। चलिए, डाउट है इसमें किसी को कोई? राइट, ओके। अगर डीएनए में से डीएनए बनता है एस फेज के अंदर, वो रेप्लिकेशन है। डीएनए में से आरएनए बनता है, वो ट्रांसक्रिप्शन है। जो एमआरएनए है उसमें से प्रोटीन बनता है, वो ट्रांसलेशन है। ये सब हमें सीखना है एक्चुअल में। इस चैप्टर के अंदर हम यही सब सीखने वाले हैं। फाइन। सो डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस, आई होप आई एम comfortably you have studied, comfortably you understood, and comfortably you can remember. All right. So that's given into your book. Yes, Food Center. सर आपने बोला कि जो टीआरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो टीआरएनए को कुछ नहीं करते? अगर से फॉर एग्जाम्पल गुंडा है कोई, गैंगस्टर, से फॉर एग्जाम्पल, जो कभी किसी को मार देता है, कभी उसको मार देगा, कभी इसको मार देगा, जिसको मर्जी पड़े मार देगा, घर जाके अपने घर वालों को थोड़ी ना मारेगा। उसको पता होता है ना ये अपने हैं। तो जिस घर में ये दोनों एक साथ रहते हैं, राइबोसोम भी वहीं पे रहता है, लाइसोसोम भी वहीं पे रहता है, तो उनको पता है कि हम तो भाई भाई है भैया, हमें मारना नहीं है। अंडरस्टूड? यस और नो? सो वो आइडेंटिफाई उसको है, इतनी सेंस है उसके पास, आई मीन कि इसको मारना है या उसको। मोलिक्यूल का यूज हो जाएगा तो मोलिक्यूल को वो मारेगा। राइट? सो ये एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है उसके पास। फाइन। सो डीएनए फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। हमने दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का पूरा नाम आपको शायद पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। It is acting as a genetic material into the most organism except few virus. Right? तो वो वायरस के अंदर आरएनए होता है, डीएनए होता ही नहीं है। तो वहां पर आरएनए ये रहा, फाउंड एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। बाकी जिसके अंदर डीएनए है उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। राइट? ओके, चैप्टर नंबर 2, स्टैंडर्ड 11, virus. 3 types of virus I talked about. Number 1, plant virus. Number 2, animal virus. Number 3, bacteriophage. 3 टाइप के वायरस होते हैं। उसमें what type of genetic material they had, उसकी भी हमने डिटेल में एनालिसिस की थी कि काफी सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। उसमें लिखा था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएसआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएसडीएनए मींस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सब क्लासिफिकेशन वहां पे जो अभी मुझे रिक्वायर्ड है वो उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस एवरी फिनोमेना। तो वो नॉलेज मेरे को चाहिए आपके ब्रेन में रिकवर्ड मोड में। राइट? तो उसको याद हल्का सा कर लीजिएगा। तो अगर वायरस है तो उसमें डीएनए नहीं है, अगर उसमें आरएनए है। आरएनए है तो डीएनए नहीं है। कुछ वायरस ऐसे जिसमें ओनली आरएनए है, डीएनए नहीं है। उसका एक एग्जांपल हमने देखा था, रिट्रोवायरस, टीएमवी। एक था टोबैको मोज़ेक वायरस, दूसरा क्या था?
सर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, राइट। दो एग्जाम्पल वहां पर हमने देखे थे। सो फाउंड एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, ओके, मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। अगर वो लोअर एनिमल है वायरस तो की, अगर वायरस नहीं है और रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका क्या रोल है? मोस्ट ऑर्गेनिज्म जहां पर जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। तो आरएनए क्या काम करेगा? ये है यहां पर। अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो आरएनए का काम क्या होगा? तो मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। अब मैसेंजर तो अभी आया था, किसको याद है? यस बोलो। सर एमआरएनए। एग्जैक्टली राइट। सो एक टाइप आ गया अपना आरएनए का। ओके, देखिए उसके नीचे की लाइन, आरएनए ऑल्सो फंक्शंस एज एडेप्टिव। एडेप्टिव। अब एडेप्टेशन, एडेप्टिव मींस जो पकड़ पकड़ कर खींच खींच कर लाता है, टीआरएनए। रेडी? तीसरा स्ट्रक्चरल, मैंने आपको समझाया कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर, तो टीआरएनए हो गया, अब आरआरएनए आ गया, तीसरा जो बचा था। तो तीन हो गए, एमआरएनए मैसेंजर, एडेप्टिव, टीआरएनए स्ट्रक्चरल, आरआरएनए। बात हो गई खत्म, तीन। अब नीचे लिखा है एक और वर्ड, कैटालिस्ट मॉलिक्यूल। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में। कहां पर जाएंगे? चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे। एंजाइम इज द हेडिंग, एंजाइम इज द हेडिंग। सबसे फर्स्ट लाइन थी उसके अंदर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट। अब वो एक्सेप्ट क्या था वो आपको मुझे याद करके बोलना है। दैट्स द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। बोलिए बरोड़ा वाली बहन। अरे बिंदास बोलना है, यहाँ पे गलत होगा तो मैं सुधार लूंगा, इसी के लिए तो बैठे हैं हम। राइबोसोम्स। थोड़ा सा मॉडिफाई करो, राइबोसोम नहीं, जोम नहीं, वर्ड कुछ अलग है। राइबोस। राइबोजाइम। क्या है स्ट्रक्चर? राइबोजाइम। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, राइबोजाइम। हम एंजाइम की बात कर रहे हैं तो जाइम तो आएगा ही। ये दो अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बाइंड वर्ड है। वो दो वर्ड क्या है? देखिए लिखिए यहां पर, देखो ये राइबो कहां से आया, मैं उसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं, राइबोसोमल। ये जाइम आया है एंजाइम में से। तो फुल फॉर्म इसका राइबोजाइम का है, राइबोसोमल एंजाइम। क्या नाम है? राइबोसोमल एंजाइम। अब राज की बात खोलने जा रहा हूं, राइट। पूरा राइबोसोम, उसके तीन ही कंपोनेंट है। लार्ज सब यूनिट वो प्रोटीन है, स्मॉल सब यूनिट प्रोटीन है, एंड आरआरएनए न्यूक्लिक एसिड है। उसके अंदर तीसरा कुछ है ही नहीं। अब यहां पे आरआरएनए will act as an enzyme। ये एक ही ऐसा स्ट्रक्चर एक्सेप्शन है कि जो प्रोटीन नहीं है फिर भी एंजाइम बनकर काम कर रहा है। तो मैं अगर आरआरएनए बोलूं तो वो स्ट्रक्चरल भी है एंड कैटलिस्ट भी है। वो रिबोसोम का स्ट्रक्चर भी बनाता है एंड वो एज एन एंजाइम भी काम करेगा वहां पर। फाइन। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस थ्री काइंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। एक होगा एमआरएनए जो मैसेंजर की तरह काम करेगा, एक होगा टीआरएनए जो एडेप्टिव है, एंड एक है आरआरएनए जो स्ट्रक्चरल प्लस कैटलिस्ट है। ओके, स्ट्रक्चरल में मैं और भी एक ऐड कर सकता हूं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहा हूं, आरएनए के नहीं, न्यूक्लिक एसिड वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपका जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर बनाता है।
जेनेटिक मटेरियल मीन्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ना आपका। तो अगर 4 टाइप के कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, उसमें फर्स्ट 2 है ना वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट 2, और लास्ट 2 है मीन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक, दे आर स्ट्रक्चरल, राइट। एक जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर बनाता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर? ऑल राइट। So with your permission, I am into the next page. Fine. So DNA, 2 थे हमारे पास मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, तो उसमें से पहला चांस तो हमें डीएनए को देना पड़ेगा डेफिनेटली, बिकॉज दे आर लार्ज। तो जो बड़ा उसका टर्न पहला, है ना। सो डीएनए, सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने का थोड़ा बहुत जितना भी हमें पता है चैप्टर नंबर 9 में, ये आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है। मेजर कंटेंट आज का हम जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो ऑलमोस्ट रिवीजन पार्ट होने वाला है अपना, जो 9th चैप्टर में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, और ऐसा लगेगा कि हम रिवाइज ही कर रहे हैं मोस्टली, आई मीन सब नहीं बट मोस्टली। सो डीएनए, एज यू नो अबाउट, इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या है उसके पास? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए एंड आरएनए के बीच का जो डिफरेंस है वो ये, आइदर इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज और इट कंटेन्स राइबोज। अब ये राइबोज है क्या? व्हाट इज राइबोज? यस प्लीज, फुल सेंटर। Sir, maybe purines and pyrimidines. It is not. Purines and pyrimidines are nitrogen bases. Yes. Nucleosides. Sorry? Nucleosides. तेरी सास का कपार, वो शुगर है, शुगर। राइबोसिस आर शुगर, राइट। मोनोसेकेराइड अगर 3 कार्बन कंटेनिंग है तो ट्रायो शुगर बोलेंगे हम उसको। अगर 5 कार्बन कंटेनिंग है तो उसको हम पेंटोज शुगर बोलेंगे, एंड अगर 6 कार्बन कंटेनिंग है तो उसको हम हेक्सोस बोलेंगे। हेक्सोस का एग्जाम्पल 6 कार्बन कंटेनिंग का है ग्लूकोज C6H12O6, राइट। H5C10O6 of 5, that's your ribose. C5H10O5 is your ribose. Ready? And अगर आपने क्रेब्स साइकिल को, रेस्पिरेशन को, ग्लाइकोलाइसिस को केयरफुली पढ़ा हो, तो से फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो होता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसको मैं बोलता हूं PGAL एंड DHAP, पता है? उसमें से अगर फॉस्फेट्स निकाल दिए जाए, से फॉर एग्जांपल PGAL फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, तो फॉस्फो निकाल दो, ग्लिसराल्डिहाइड रहेगा, तो ग्लिसराल्डिहाइड इज ट्रायोज, राइट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट निकाल दो, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज ट्रायोज शुगर। पहले था ग्लूकोज जो हेक्सोस शुगर था, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ट्रायोज ही बनेगा ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं जो समझा रहा हूं। अगर 6 कार्बन वाला है कोई मॉलिक्यूल, उसको मैंने 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर दिया तो 3 कार्बन वाला ही बनेगा ना, 2 टुकड़े। बस वही PGAL एंड DHAP है जो ग्लूकोज में से बनता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो वो ट्रायोज शुगर है। कौन? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसराल्डिहाइड, 2 ग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे, अगर नीट में, तो आप बोलोगे कि ये तो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। नो, यू आर सपोज टू कोरिलेट देम। सिलेबस के बाहर का नहीं है, इट इज गिवन इनटू द सिलेबस। केयरफुल कंसीडर करके आपको उसको आगे बढ़ना होगा। देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी
can be extracted from the text which is given into your books. ऐसा मटेरियल एक्सट्रैक्ट होकर निकलेगा कि अगर टीचर भी उसको देगा ना एग्जाम को, तो वो भी अगर बाल है तो ठीक है, मेरे जैसा है तो खंजवाड़ता रह जाएगा कि ये क्या है. सो वो दैट्स योर टेस्ट, दैट्स योर नीड. वही तो एग्जाम है ना, वहीं पे तो हम मार खा जाते हैं, है ना. अभी काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आने वाले जहां पे मैं बोलूंगा कि आप मेरे वर्ड्स को केयरफुली समझिएगा. मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप आंसर दोगे केयरफुली समझ के, तो भी वो रॉन्ग होगा. मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि देखो मैंने आपको समझाया था ऐसा करके. आज ही शायद आएंगे ऐसे 2-4 क्वेश्चन मे बी, है ना. ओके, सो डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड का. देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम वायरस टू ह्यूमंस, कि जहां पर डीएनए है. कुछ वायरस है जिसके अंदर डीएनए है. मोनेरा, उसके अंदर तो 100% डीएनए ही है. और उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको नॉन ऑर्गेनिज्म मींस प्रोटिस्टा है, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब में डीएनए ही मेजर कंटेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो अगर मैं बात करूं मेरा डीएनए और अगर मैं कंपेयर करूं वायरस का डीएनए, तो सेम थोड़े ही होगा यार. उसकी लेंथ भी वेरी होगी, साइज वेरी होगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सप्रेशन वेरी होंगे डेफिनेटली, है ना. आई एम क्लियर, आई होप, है ना. ओके, सो यहां पे कंपैरिजन दी है 3-4 एग्जांपल की. मे बी आपकी बुक में अलग एग्जांपल होगा, मैंने यहां पे अलग एग्जांपल लिया होगा मे बी, है ना. से फॉर एग्जांपल एक यहां पर वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज T2. ये एक नाम है बैक्टीरिया का, सॉरी वायरस का, जिसके अंदर सीक्वेंस है 1,60,000 न्यूक्लियोटाइड्स की. 1,60,000 न्यूक्लियोटाइड की. अब यहां पे दूसरा एग्जांपल भी आपको मेरे यहां पे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज लेम्बड़ा. ये दूसरा टाइप का वायरस है. अब उसके अंदर आप सीक्वेंस देखो तो वहां पे लिखा है 502 बेस पेयर, राइट. आपके अंदर होगा कुछ अलग ही, वो 5x समथिंग है, 456 और ऐसा कुछ नाम है एग्जाम्पल में वायरस का. अगर है तो मिला ऐसा कुछ, है ना. ओके, सो वो अलग एग्जाम्पल, वहां पे मेरा एग्जाम्पल अलग है. बाकी अपने को तो सिर्फ कंपेयर करना है साइज का. देखिए मैंने यहां पे 2 क्यों लिए हैं, उसका एक रीजन है. छोटा सा डिफरेंस है वर्ड में. देखिए तो क्या डिफरेंस दिखा रहा है आपको यहाँ पे वर्ड्स में. नीचे की लाइन आपको कंपेयर करनी है. T2 और lambda. नीचे की लाइन कंपेयर करनी है भैया, मैंने वो बोला आपको. नाम को कंपेयर नहीं कर. नाम तो अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर का सचिन तेंदुलकर, उसमें कंपैरिजन करनी ही नहीं है. बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स. एक में न्यूक्लियोटाइड लिखा है, एक में बेस पेयर लिखा है, तो हमें टारगेट करना है बेस पेयर को. से फॉर एग्जाम्पल बेस पेयर, पेयर का मतलब क्या होना चाहिए, एक बाजू है दूसरा उसके सामने है, उसको पेयर बोलेंगे ना. डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो किसको पता है, एंट्रेस करिए. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और दोनों दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल ऐसे अरेंज होती है, ऐसा चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है, राइट. तो डबल स्ट्रैंड है तो क्या है, सामने सामने अरेंज है. एडेनिन के सामने कौन होगा, थायमिन. साइटोसिन के सामने कौन होगा, गुआनिन. याद आ गया वो, है ना. तो वो बेस पेयर बोलेंगे हम उसको. क्या बोलेंगे, बेस पेयर. तो यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां पे डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है. क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है डीएनए. इसको बोलूंगा मैं SSDNA. इसका फुल फॉर्म होगा सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए. इसको मैं बोलूंगा DSDNA. इसका मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बाकी जितने एग्जांपल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ही है. एग्जांपल नंबर 3 है यहां पर इस्चरेशिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई. नाम तो सुना होगा सबने.
ई कोलाई में कितने हैं देखिए बेस पेयर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर है, इतने बेस पेयर लंबा है उसका डीएनए। बेस पेयर मींस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। नेक्स्ट ह्यूमन डीएनए, उसमें एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है, इन हेप्लॉइड जीनोम, हेप्लॉइड जीनोम यहां पर दिया गया है 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। अब अपने पास अपने सेल हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है। कैसे है? डिप्लॉइड। तो हमारे पास कितना होगा 2 इंटू 3.3 मीन 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो मैं क्वेश्चन ऐसा बना के पूछ लूंगा कि ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में कितने बेस पेयर्स होंगे, आप लिखोगे 3.3 इंटू 10⁻9, है ना। लेकिन वहां पे आप ये कंसिडर नहीं करोगे, तब एग्जाम के अंदर ये हेप्लॉइड जीनोम का ही है, वो याद नहीं आएगा उस टाइम। अभी तो मेरे सामने बैठे हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, नहीं हम ये नहीं लिखेंगे, पर लिख के वही आओगे अगर केयरफुली वो क्वेश्चन को आपने समझा नहीं तो। सो हर एक वर्ड का यहां पर केयरफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। माय इंटेंशन इज टू हाईलाइट दीज पॉइंट्स, राइट। तो हेप्लॉइड सेट जो है, सिंगल सेट जो आपको मिलता है या तो मम्मी का या तो पप्पा का, दो में से अगर सिंगल सेट कोई सिंगल जीनोम लेता हूं तो उसमें 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स मिलेंगे हमें। तो ये कंपैरिजन है छोटे से छोटे टाइप के डीएनए से लार्जेस्ट डीएनए तक का, वेरी है। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप का डीएनए है। चलिए अब इसमें कोई और डाउट जनरेट हो रहा है या नहीं? ऑलराइट, चलिए हम बात करते हैं अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जो डीएनए में बनती है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? तो क्या न्यूक्लियोटाइड से। मोनोमर का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किससे बनता है? एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोस शुगर एंड तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। किसको नहीं पता था ये? सबको पता था, है ना। तो फिर मैंने बोला था ना काफी सारा मटेरियल ऐसा आने वाला है जो आपको पता ही है, फिर भी यहाँ पे दिया गया है एज ए पार्ट ऑफ रिवीजन, नहीं है टेक्स्ट बुक का कंटेंट है। देखिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सब, है ना। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। किसको नहीं पता था प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स है? सबको पता था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। एक ग्रुप है इसको मैं बोलूंगा प्यूरिन, दूसरा ग्रुप का बोलूंगा मैं पिरिमिडिन। नाइन्थ में ऐसा लगता था ओ यार तेरी, ये सर क्या समझा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब समझ में आ गया, पता चलने वाला है, समझ में आ रहा है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन? किसको याद है? अभी पता चल जाएगा किसको कितना पता चला है ना। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में? जल्दी फटाफट बोल जेनिफ, बोल बोल फटाफट। नहीं याद आ रहा? हिंट देता हूं, चलो कुछ हिंट देता हूं अगर मिलेगी तो। यस, यहां पर है वो हिंट, अगर डायग्राम देखो और याद आए तो। कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन इंडिया, यू आर वर्ल्ड चैंपियन नाउ। रिंग्स को कंपेयर करना। You are supposed to compare the ring structure of nitrogen base to find out the difference between purine and pyrimidine. बोलिए। સર बोलिए। પ્યુરિન્સ હોય છે ને એમાં બે રિંગ્સ હોય છે અને પિરિમિડિન્સમાં એક રિંગ હોય છે. Great, good,
राइट, थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना पड़ा, लेकिन थोड़ी हिंट दी तो मे बी आपको याद आ गया है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्यूरिन है, ये डबल रिंग वाला। ये जो सिंगल रिंग वाला है वो पिरिमिडिन स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में ये हल्का सा डिफरेंस है। डबल स्ट्रक्चर जो रिंग वाला है, डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर वो प्यूरिन है, एंड सिंगल रिंग वाला है वो पिरिमिडिन है, राइट। सो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन, नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 ग्वानिन। किसको याद है? Adenine stands for, means coded by capital A, guanine is coded by capital G. There are three types of pyrimidines. एक है साइटोसिन कैपिटल C, थाइमिडीन कैपिटल T, तीसरा है यूरासिल कैपिटल U। अब मेरे लिए जो इंफॉर्मेशन याद रखने की है कि मेरे पास जेनेटिक मटेरियल दो है, या तो वो डीएनए है या तो वो आरएनए है। अब रूल ये है कि कंस्ट्रक्शन में दो प्यूरिन होने चाहिए और दो पिरिमिडिन होने चाहिए। यहां पर भी यही रूल है, दो प्यूरिन होने चाहिए और दो पिरिमिडिन होने चाहिए, राइट। अब यहां पर मैं कंपैरिजन करूं तो प्यूरिन तो दो ही है, तो वो तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ए एंड जी ये तो दोनों है ही, इसमें भी यही है दो। बट पिरिमिडिन में आपके पास तीन में से दो सिलेक्ट करने हैं। तो डीएनए के लिए जब आप सिलेक्शन करोगे ये तीन में से, तो साइटोसिन एंड थाइमिन इसका सिलेक्शन होगा, राइट। और यहां पे यूरासिल एंड साइटोसिन का सिलेक्शन होगा, राइट। क्यों? क्योंकि सामने सामने अगर डबल स्टैंड है, से फॉर एग्जांपल, तो सामने सामने उसको ज्वाइंट होना है। अगर उसको मैं सीधा कर दूं, से फॉर एग्जांपल ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर ये, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो इसको सामने सामने ज्वाइंट होना है ना। पता है ना एडेनिन के साथ कौन ज्वाइंट होने वाला है? एडेनिन के साथ कौन ज्वाइंट बनाएगा? बोलिए, भूज सेंटर। थाइमीन। एंड साइटोसिन के साथ? ओके, मैं सेम क्वेश्चन आरएनए के बारे में पूछता हूं। आरएनए में एडेनिन के सामने कौन पेयर बनाने वाला है? बोलिए, बरोड़ा बरोड़ा बोलिए फटाफट, चलिए। ग्रेट। भुज? अहमदाबाद? ओके, गुड आंसर, है ना। अब मैं वापस आता हूं थोड़ा यहां पर। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो पेयर किसके साथ बनाएगा? किसके साथ वो पेयर बनाने जाएगा? चार मार्क गए ना। मैंने बोला था ना अब भी 10-15 मिनट पहले कि यहां पे मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप आंसर गलत ही देने वाले हो। बस नीट वाले यही करने वाले हैं आपके साथ, यही माइंड गेम खेलने वाले हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको केयरफुली सोच कर आराम से उसको इंटरप्रीट करना पड़ता है। तो इंटरप्रिटेशन गलत,
लॉजिक गलत अप्लाई होगा, लॉजिक गलत अप्लाई करोगे तो आंसर कैसे सही हो पाएगा? ये पॉइंट है। नीट में आप सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं देते हो, आप एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हो, आप आपकी खुद की स्किल, एनालिटिकल स्किल का टेस्ट देते हो एक्चुअली। वहां पर सिर्फ कंटेंट का टेस्ट नहीं होता है। सो ये बात कंसिडर करने आपको चाहिए, ये अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे पेयरिंग नहीं होती है, सिंगल सीक्वेंस में ही एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन चाहिए हमें। यहां पे दोनों है, सिंगल सीक्वेंस में भी चाहिए और पेन बनाने के लिए चाहिए, दोनों में चाहिए डीएनए में। सो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, डीएनए एंड आरएनए के बीच में। फाइन, किसी को कोई फर्दर डाउट है इसमें? इजी है, हमने रिकॉल ही किया इंफॉर्मेशन को, दूसरा कुछ नहीं किया यहां पर। एंड अगेन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि अगर न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने जितनी सीखी है अब तक, वो ये है कि मुझे अगर न्यूक्लियोटाइड को बनाना है तो मेरे पास 3 मटेरियल होने चाहिए। मटेरियल नंबर 1 जो मुझे चाहिए वो है नाइट्रोजन बेस। मटेरियल नंबर 2 जो मुझे चाहिए वो है शुगर, दैट इज पेंटोस शुगर। एंड मटेरियल नंबर 3 जो मुझे चाहिए वो है फॉस्फेट। इन तीनों को मैं मिक्सर में रख के स्पीच दबाऊंगा और मिक्सी फर के वो सीधा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर फॉर्मेशन करना है मुझे न्यूक्लियोटाइड का तो उसके लिए एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, राइट? सो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 2 स्टेप का प्रोसेस है, राइट? स्टेप 1, उसमें ये 2 ऐड होंगे, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर। सिर्फ शुगर लिख रहा हूं यहां पर, आप समझ जाइएगा, राइट? तो अगर नाइट्रोजन